Welcome back to Academy of Earth Sciences. This is Akansha, and I am bringing you part 2 of the Assistant Hydrologist Exam Previous Year Question Series. So let's get started. Okay guys, now we have question number 11. Which one of the following is a chromium bearing garnet? First we have grossular, then we have uravovite, then we have spessartine and pyrope. Let's see the formulas one by one. Grossular is Ca3Al2 SiO4 whole thrice. Uravovite is Ca3Cr2 SiO4 whole thrice. Spessartine is Mn3Al2 SiO4 whole thrice. And pyrope is Mg3Al2 SiO4 whole thrice. So the correct answer would be uravovite. Moving on to question number 12. Which one of the following mineral shows piezoelectric property? Okay, piezoelectricity is electricity generated by a crystal when it is subjected to mechanical stresses. अब इसके लिए हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मिनरल के अंदर या क्रिस्टल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर एक पोलर एक्सिस होना चाहिए. पोलर एक्सिस क्या होता है? सपोज ये एक एक्सिस है, तो इस एक्सिस के जो दोनों एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स किसी सेंटर ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए. तो इसमें जब हम दोनों साइड से जब हम इस पे स्ट्रेस लगाएंगे, सपोज हमने इस क्रिस्टल पे स्ट्रेस लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा? एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, वहां पर तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो ये जो पोलैरिटी यहाँ पे बन गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की, इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. तो ये है हमारी पीजो इलेक्ट्रिसिटी. आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस ओनली क्वार्ट्ज हैज अ पोलर एक्सिस, सो क्वार्ट्ज विल शो पीजो इलेक्ट्रिसिटी. Question number 13. In isometric system, a 6-phase solid in which each phase cuts one axis and is parallel to the other 2 axes is known as. Okay, let's see कि 6 phases किस किस options में है. First we have hexahedron. Okay, यहाँ पे 6 phases हैं. Octahedron 8 phases. Rhombic dodecahedron 12 phases. Tetrahexahedron 24 phases. So the only option which has 6 phases is option A. So hexahedron is the correct answer. Moving on to question number 14. An open form comprising 2 horizontal faces in normal class of tetragonal system is termed as. Okay, let's see कि यहाँ पे 2 faces वाली classes कौन कौन सी हैं. First of all, open forms सारी open forms हैं. First we have pyramid. Pyramid में minimum हमारे पास 3 faces होते हैं. डोम में 2 फेसेस होते हैं, बेसल पिनाकोइड में 2 फेसेस होते हैं, एंड प्रिज्म में 3 फेसेस होते हैं. तो हमारा पिरामिड और प्रिज्म तो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है. देन वी हैव डोम. डोम में क्या होता है? 2 फेसेस होते हैं जो एक मिरर प्लेन से रिलेटेड होते हैं. सपोज दिस इज मिरर प्लेन, ये मिरर प्लेन है, तो ये दोनों फेसेस मिरर प्लेन से रिलेटेड होते हैं. सिमेट्री यहाँ पे क्या होती है? मिरर प्लेन. लेकिन इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ये दोनों फेसेस हॉरिजॉन्टल हों. तो डोम is not the correct answer. Then we have basal pinacoid. Basal pinacoid में क्या होता है? जो दो फेसेस होते हैं बेसल पिनाकोइड में, और दोनों फेसेस क्या होते हैं? सी एक्सिस को कट करते हैं. सी एक्सिस को कट करेंगे तो वो दोनों फेसेस कैसे हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल. अगर ये सी एक्सिस है और ये हो गए हमारे एक्सिस, तो सी एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये दोनों फेसेस कैसे हो गए? हॉरिजॉन्टल. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेसल पिनाकोइड. Now question number 15. Which one of the following is the correct composition of troctolite? Okay, troctolite is a gabbroic rock. So let's see the IUGS classification of gabbroic rocks. Okay. On one axis we have plagioclase, and the other we have pyroxene and olivine. As we can see that there is no pyroxene in troctolite. It falls between plagioclase and olivine. So it has olivine and some plagioclase. Let's see what our options are. Okay, यहाँ पे हमारा पायरोक्सिन है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे भी पायरोक्सिन है, ये भी कैंसिल आउट हो गया. ओके,
So the correct option is olivine plus plagioclase. Question number 16. The degrees of freedom at peritectic point in a binary peritectic system will be. Okay. तो ये हमारे पास एक पेरिटेक्टिक सिस्टम है, बाइनरी पेरिटेक्टिक सिस्टम है. यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आई है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा पेरिटेक्टिक पॉइंट है. सो लेट्स सी कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है. मैं यहाँ पे फेज रूल लिख लेती हूँ. F इज इक्वल टू C माइनस 5 प्लस 1. ओके. अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. हमें पता है कि बाइनरी सिस्टम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 होंगे. माइनस नंबर ऑफ फेजेस कितनी है. यहाँ पे हमारे पास फॉस्टेराइट है, लिक्विड है और एंस्टेटाइट है. तो नंबर ऑफ फेजेस हो गई हमारी 3 प्लस 1. तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया. डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 0. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0. So correct option is option D. Let's begin question number 17. Which one of the following are examples of layered mafic intrusion? So layered mafic intrusions are basically large scale igneous intrusions that are in shape of a pancake. First we have Bushveld Igneous Complex. This is the largest layered mafic intrusion in the whole world. So this is correct answer. Stillwater Complex is another layered mafic intrusion. It is in Montana, USA. And next we have Skiergård intrusion. It is in East Greenland and it is also a layered mafic intrusion. So all three options are correct. So D would be the right answer. Question number 18. Mineralogical composition of pulcasite rock is. So pulcasite is basically a nepheline bearing syenite. Its composition is similar to granite, but the difference is that it does not contain any quartz. So let's see which all options we can eliminate. Okay, let's see. Nepheline. Okay, B में nepheline है, C में nepheline है और किसी ऑप्शन में nepheline नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं. ओके, इसमें हमारा क्वार्ट्स है. सो क्वार्ट्स, अभी मैंने बोला था कि क्वार्ट्स नहीं होता उसके अंदर, तो ये गलत हो गया. देन करेक्ट आंसर वुड बी एंटीपरथाइट, एजुरीन प्लस nepheline. Okay, let's begin question number 19. Which one of the following is a diagenetic process? So diagenetic processes are processes that occur after the deposition of sediments but before metamorphism starts. So metamorphism और डिपोजिशन के बीच में जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं सेडिमेंट्स के अंदर, उसको हम डायजेनेटिक प्रोसेसेस कहते हैं. सो मेटामॉर्फिज्म तो कैंसिल आउट हो गया. अभी मैंने बोला कि मेटामॉर्फिज्म से पहले होना चाहिए, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के बाद. तो ये दोनों ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो गए. देन द लास्ट ऑप्शन इज पैलिंजिनेसिस. दिस इज एन इग्नियस प्रोसेस. इसमें क्या होता है, कंप्लीट मेल्टिंग हो जाती है जब किसी भी रॉक की और मैग्मा जनरेट होता है, तो उसको हम पैलिंजिनेसिस कहते हैं. तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता. सो द करेक्ट आंसर वुड बी डिसोल्यूशन. Let's move to last question of the video. Which one of the following is a unidirectional paleocurrent indicator? First we have groove cast. Groove cast are basically indentations caused by particles that are carried within a flow. They are basically flow axis indicators. यानी कि वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में हम उन स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ फ्लो एक्सिस हमें बता सकते हैं. सो ग्रूव कास्ट इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिकल रिपल्स. अब सिमेट्रिकल रिपल्स भी फ्लो एक्सिस इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन ये हमें यूनिडायरेक्शनल पेलियो करंट इंडिकेट नहीं कर सकते. मतलब कि वो अपस्ट्रीम करंट फ्लो हो रहा था या डाउनस्ट्रीम फ्लो हो रहा था, ये हम सिमेट्रिक रिपल से नहीं पता लगा सकते. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. चैनल एंड स्कोर मार्जिन्स. अब चैनल एंड स्कोर मार्जिन्स में क्या होता है, जो चैनल का कट बैंक होता है वो फ्लो डायरेक्शन की पैरेलल होता है. सो उससे भी हमें फ्लो एक्सिस पता चल सकता है, लेकिन वो अपस्ट्रीम था या डाउनस्ट्रीम था ये हमें नहीं पता चल सकता. सो दिस इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव क्रॉस बेडिंग. क्रॉस बेडिंग में क्या होता है, ये जो हमें यहाँ पे लैमिले दिखाई दे रहे हैं क्रॉस बेड्स में, ये जो हमें लैमिले दिखाई दे रहे हैं, इनका जो डिप डायरेक्शन होता है उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं पेलियो करंट डायरेक्शन, और हम उसमें इजीली अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भी उसमें हम देख सकते हैं. उसमें हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का इजीली पता चल जाएगा.
हम इनका डिप मेजर करेंगे और उससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि अपस्ट्रीम फ्लो हो रहा था या डाउनस्ट्रीम फ्लो हो रहा था. So cross beds is the correct answer. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up. And if you have any queries, write it down in the comment section below. And please share it with your friends and subscribe to our channel. And we will be posting videos very regularly. So stay tuned and I'll see you in the next one. Bye.